This week on LIC Presents Journey in the Life of an Indian, we profile two individuals who dared to take the road less travelled. Dr. S.B. Misra, fueled by his thirst for knowledge, walked 12 kilometers to school every day. After making a name for himself as a geologist in Canada, he returned home to fulfill his dream. Vicky Roy ran away from home to escape poverty. His days as a rag picker in Delhi have shaped his perspective as a world-class photographer. The village of Devra is tucked 50 kilometers away from the state capital Lucknow. Eager talks are on between the village head and elders. The successful completion of roadwork has paved the way for next round of developmental work. Apart from village welfare, there is one thing that binds most of them together. They are all alumni of the same school, Bharatiya Gramin Vidyalaya. यहाँ पर कोई स्कूल नहीं था और न कोई पढ़ने का कोई रास्ता था, दूर दूर था, कम से कम 10 किलो 15 किलोमीटर दूर। तो वहाँ जाने से लोग परेशान होते। वहाँ से शिक्षा प्राप्त करके यहाँ से पढ़कर कोई पुलिस में गया है, कोई 2-4 प्रधान 5-6 प्रधान हो गए हैं यहीं के पढ़ने से, और यहाँ का विकास हम लोगों ने मिलकर किया है। This long walk ended the flight of dreams for many. But since 1972, people of Devra and surrounding villages have been indebted to the efforts of this man, Dr. S.B. Misra. Dr. S.B. Misra's own ordeal as a student from Devra in 1950s haunted him. His thirst for knowledge had motivated him to walk 12 kilometers to school every day. But the experience left its indelible mark on him. It used to take 2 hours this way and 2 hours back. So 4-hour journey, and we used to get tired. Although that time of 4 hours we used to utilize for studying, for remembering, for doing some of the homework. So during that time, idea used to come to my mind, why there is no school in my village? If I wanted, I could get a job after class 8 also. Those were the days when jobs were not a problem at all. I could get a good job after class 10. But somehow, although my father was financially weak, but he never insisted that I should earn money or take a job. And the idea never occurred to me either. Padhna hai, padhna hai. Despite all the roadblocks, he made his way to Lucknow and then to Canada as a geologist in 1960s, where an important fossil discovery propelled him amongst the big leagues. But Dr. Misra had other plans. Overnight, in the geological world, I became famous. Well, had I continued there, this would have taken me to the top of the glory, no doubt. But I was kind of restless. I was restless because I wanted to do something for my village. I was the one who had the urge to spread education in my area, and I did not calculate what I am leaving here and what I am going to gain by that. That calculation was not in my mind,
Maybe if I had calculative mind, I would have stepped back. But then I came to my village, started this. He returned to set up his school in Kunnora, an area untouched by education and development till 1970s. And along with his wife Nirmala Misra, he built this school brick by brick, cementing it with their sweat and sacrifices. This whole area is inhabited primarily by scheduled caste, by OBCs and some minorities, and the rest, of course, what they call Savarnas. So it was a very backward area. Girls' education was the biggest challenge. It was almost nil. Even to primary school, only a few girls were going. Boys used to go to the primary school. There were so many things why they were not going. One of them, of course, gender discrimination. What girls will do after going to school, after reading and so on. And the other was security also. His wife sought to remedy this situation by personally trying to convince the families to send their girls to school. 6-7 किलोमीटर पैदल चल के और उन लेडीज़ को ये समझाते थे कि अपने बच्चों को भेजो। तो पहले तो कई जगह से जवाब मिले, कई जगह ऐसा मिला कि प्रिंसिपल साहब को क्या इतनी रुचि हो रही जो हमारी लड़कियों को बुलाने आई। कई जगह हमने बहुओं के लिए कहा कि तुम लोग बहुएं दूसरा पास तीसरा पास है, आप लोग भेजिए तो हमारे यहाँ ये लोग पढ़ लें, इनकी ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आया। पहले साल केवल 10 या 15 लड़कियाँ थीं, लेकिन उनको हमने इतना अच्छा पढ़ाया कि वो लड़कियाँ ही जाके अपने गांव में इतना प्रचार करी कि फिर जाके अगले साल फिर हमको अच्छी स्ट्रेंथ आ गई। यहाँ कौन पोती है तो वो पढ़ते रहे, पोता पढ़ी नहीं, 3 ठवर जाने एक दुई निके पढ़ी नहीं, एक हमार पढ़ी, सब पढ़े ही किया है। अनेक कलम बकराई प्रिंसिपल साहब किया। हम तो कहीं भगवान खूब इनका आगे से आगे बढ़ो। Dr. Misra and his wife, through their school, helped villagers break free from caste barriers during the initial years. Bringing students from those sections was a challenge, and we tried to bring them to the school, sit by the side of the upper caste students. That itself was a major step, sitting by the side of, and side by side sitting, side by side working, eating, playing. एक हरिश्चंद्र नाटक तैयार किया और उसमें और एक रोल और किया जिसमें राजा दशरथ एक शेड्यूल कास्ट को बनाया, उसका नाम बदलू था। और उसके बाद जो राम बनाया और उसके बाद जो और जितने भी पात्र थे वो ब्राह्मण थे। राजा दशरथ के कई जगह सर झुका के वो प्रणाम भी करते थे। ये बहुत बड़ा वो था। Discipline, quality education, and various facilities acquired through donations have convinced families to send in as many as 3 generations to the school. Even the teachers here were once students of the Misras. One of them is Surendra Singh, who now teaches senior students. जब यहाँ बच्चे पढ़ने लगे 8वीं तक 10वीं तक वो पहुँच गए तो उनके अंदर पढ़ने की और इच्छा हुई। हम लोग भी शायद नहीं पढ़ पाते इससे ज़्यादा। अगर ये स्कूल न होता तो हो सकता हम लोगों की पढ़ाई ब्रेक हो जाती, पहले हुआ करती ही थी, कोई आगे पढ़ नहीं पाता था। The humble start to the school rapidly gained pace with the support of the community. And now, with the inclusion of higher classes, students like Sonam can dream of a better future. मैम मैं अपने मैनेजर जैसे बनना चाहती हूँ। मैम उन्होंने इतना बड़ा काम किया है यहाँ इस क्षेत्र में आकर। हम लोग गांव के विषय में इतना कुछ सोचते हैं, हालांकि उन्होंने गांव कनेक्शन अखबार भी निकाल दिया हम लोगों की जानकारी के लिए। शायद हम लोग शहर नहीं
पहुंच सकते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम लोग भी उनसे कम नहीं हैं। इन्हीं की वजह से अब कोई ये नहीं कहेगा हमसे कि गांव के हो, अगर कहेगा तो हम क्वेश्चन करेंगे क्यों है, आपसे कैसे कम है बताइए। तो इन्होंने इतनी प्रेरणा दी कि बेटा मन में ये सोच लो कि सब बराबर हैं। Through their work, Dr. Misra and his wife have not only earned the love and respect of their students, but also of their families. Over the past 4 decades with each student, they have laid the foundation of a better India. From a homeless street kid to a world-class photographer, Vicky Roy's adventurous life looks like a Bollywood masala flick. हाय, मेरा नाम विक्की रॉय है। मैं स्ट्रीट फोटोग्राफर हूँ और ये मेरी फोटोग्राफी की जर्नी है। Born into an impoverished family, Vicky Roy hailed from one of the remotest districts of West Bengal. He grew up in a cramped home where food was scarce. 2-2.5 साल का था तो मेरे मम्मी पापा ने मेरा टेक केयर करने के लिए मुझे मेरे नाना नानी के घर में रख दिए थे। एंड जैसे जैसे मैं, बिकॉज मेरे फैमिली काफ़ी गरीब थे एंड मेरे तीन ब्रदर और 3 सिस्टर है एंड मेरे फादर का बहुत ज़्यादा इनकम नहीं था। आई रिमेंबर वो 20 रुपीज़ घर खर्चा देता था एवरी डे का। तो इस वजह से उन्होंने मेरे नाना नानी के घर में रख दिया था, बिकॉज मेरे नाना नानी के घर का कंडीशन ज़्यादा बेटर था। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था ना, तो लाइक मेरे से बहुत काम करवाते थे, छोटी छोटी बातों पे बहुत मार पड़ती थी, तो मैं मतलब दुखी हो गया था। Tired of the regular thrashings, a young Vicky eventually ran away. Arriving in Delhi, alone, homeless and penniless. लाइफ में जो चीज़ें करना चाहता था वो मुझे लग रहा था कि हो नहीं रहा एंड बहुत मार वार पड़ती थी, तो इस वजह से थोड़ी नेगेटिविटी भी आ गई थी फैमिली के प्रति। तो इस वजह से एक दिन घर से थोड़े से पैसे चोरी किए अपने मामा के जेब से एंड स्टेशन गया, नई दिल्ली की गाड़ी लगी हुई थी, ट्रेन पकड़ के दिल्ली आ गया। मैं सोचा कि ज़्यादा दूर भागता हूँ ताकि घर वाले जल्दी ढूंढ ना सके, तो इस वजह से दिल्ली। For 6 months, he lived on the Delhi railway platform, earning money by working as a rack picker and washing dishes. कबाड़ी चुनना स्टार्ट किया, प्लास्टिक की बोतल इकट्ठे करता था, उसमें ठंडा पानी भर के जनरल डब्बे में बेच देता था। फिर मैंने डिसाइड किया कि यार यहाँ पे कुछ पैसे वैसे कमा नहीं पा रहा हूँ, तो नई दिल्ली के बगल में अजमेरी गेट है, वहाँ पे एक स्ट्रीट रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पे मैंने फिर जा कर के काम मांगा, तो उन्होंने फिर काम दिया। तो उन्होंने स्टार्टिंग में एज ए डिश वॉशर का काम दिया एंड वो मेरे लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट कह सकते हो। After surviving for 2 years on the streets, things improved for Vicky when he was rescued by Salam Balak Trust, an NGO working with street children. It was here that he got a home and a shot at an education. गुड थिंग हैपन विथ मी, बिकॉज जब मैं यहाँ पे आया तो मैं स्कूल जाने लग गया, क्योंकि हर किसी को ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है कि आप घर से आए भाग करके एंड उसके बाद आप अच्छे स्कूल में जा रहे हो, अच्छे स्कूल ड्रेस पहन के जा रहे हो, अच्छे शूज़ पहन करके जा रहे हो, आपको तीनों टाइम का बढ़िया खाना मिल रहा है। मेरी फिर सोच धीरे धीरे चेंज होती चली गई, बिकॉज जब मैं विलेज में रहता था तो मेरी सोच बहुत छोटी हुआ करती थी एंड मैं बहुत ओपन नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं होता था चीज़ें करने में। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं देखता था बच्चे थिएटर कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं। It was sheer stroke of luck that introduced Vicky to the world of photography. He assisted Dixie Benjamin, a British photographer documenting the work of the Salam Balak Trust. वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता था मुझे इंग्लिश में कि विक्की ये अपर्चर है, ये शटर स्पीड है, एंड मेरी इंग्लिश उस समय बहुत माशाअल्लाह थी, मुझे यस ओके इनके अलावा कुछ नहीं आता था।
मुझे समझ में नहीं आता था, बट मेरा हमेशा आंसर होता था यस यस यस। एंड उसके बाद वो सलाम बालक से जा रहा था, तो मैंने अपने एक फ्रेंड के थ्रू उनसे पूछा कि हाउ टू आई बिकम ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर बिकॉज आई डोंट नो इंग्लिश। तो उसने कहा कि बहुत सारे जापानीज, चाइनीज़, फ्रेंच फोटोग्राफर है, वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं बट दे आर गुड फोटोग्राफर। सो तुम इंडियन हो, यू स्पीक हिंदी एंड यू हैव वेरी गुड आई। तो एंड देन आफ्टर दैट की बैक, तो मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि कर सकता हूँ। Soon Vicky enrolled himself at a photography class and learnt the nuances of the profession. Then he started assisting portrait photographer Anay Man. जब मैंने उनको असिस्ट करना चालू किया तो सिर्फ मैं फोटोग्राफी नहीं सीख रहा था, अपने लाइफ स्किल भी वो मुझे सिखा रहे थे। फिर जब मैं शूट के दौरान कोई गलती करता था तो मुझे ऑन सेट नहीं डांटते थे, वो मेरे कंधे में हाथ डाल करके दूर ले करके जाते थे और बोलते थे कि क्या कर रहे हो। तो लाइक वो चीज़ें मुझे अभी भी अच्छी लगती हैं। मैं इस वजह से अभी भी उनके साथ काम कर रहा हूँ। 2005 से लेकर 2014 चल रहा है अभी। After that, there was no looking back for Vicky. Through his art, he tried to portray the kind of life he had experienced by living on the streets. पूरे वर्ल्ड में लोग स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं, तो मैंने सोचा कि मेरी फ़ोटोग्राफी अलग कैसे हो। तो मैंने अपने लाइफ का मिरर शूट करना चालू किया कि मैं इस स्ट्रीट में कैसे रहता था। एंड मैं जाकर के 18 साल से कम उम्र के बच्चों का फ़ोटो खींचना चालू किया। जो मेरे पिक्चर है उसमें आपको बहुत करुणा फीलिंग नहीं आएगी, बहुत दया फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है स्ट्रीट के फ़ोटोग्राफ्स है बट बहुत ज़्यादा दया फीलिंग नहीं आएगी। और मेन कि जो मैं सब्जेक्ट में दिखाना चाहता हूँ कि इस फ्रेम में हो क्या रहा है एंड मैं किसको दिखा रहा हूँ, वहाँ पे मेरी पहली नज़र जा रही है या नहीं। सो वो सब चीज़ें मेरे पिक्चर में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। In 2007, through the assistance of the British High Commission, Vicky held his first ever solo exhibition named Street Dreams. This one is my sponsor. And by 2008, Vicky was in New York to photo document the reconstruction of the World Trade Center. My Bach Foundation in New York called for an entry of photographs. They were looking for a photographer to photo document the reconstruction of the World Trade Center. This was a world call for people to propose photography prodigies. And this is when I thought that Vicky was a good fit and I nominated Vicky's work. मेरा पहला टॉप 100 में सिलेक्शन हुआ। फिर उन्होंने कहा कि कुछ कंस्ट्रक्शन साइट के फ़ोटो खींच के भेजो। तो मैंने दिल्ली मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के फ़ोटो खींच के सबसे पहले अपने मेंटोर को दिखाया। तो उन्होंने कहा कि ये सब तो बकवास है, ये फ़ोटो ठीक नहीं है, तुम इंडिया में रहते हो, कुछ इंडियन फीलिंग के साथ कंस्ट्रक्शन शूट करो कि औरत काम कर रही है गमला लेके, ब्रिक्स उठा के, उनके बच्चे उनका साड़ी पकड़ के चल रहे हैं। तो फिर मैंने उस स्टाइल में जा कर के राजस्थान हाईवे में थोड़े फ़ोटो खींचे एंड फिर मैंने वो भेजा। तो उसके बाद 2-3 इंटरव्यू हुआ एंड मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर जा रहा था, वो भी न्यूयॉर्क। सो काफ़ी एक्साइटेड था। फिर न्यूयॉर्क जा कर के मैंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का रिकन्स्ट्रक्शन शूट किया। सो आई फील वेरी हैप्पी कि मैं एक हिस्ट्री का पार्ट शूट कर रहा हूँ बिकॉज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनने के बाद एक हिस्ट्री जैसा है वो। Another feather in his cap was the launch of his first photography book, Home Street Home, capturing the life of kids at shelter homes. बुक में मेरी स्टार्टिंग होती है स्ट्रीट से कि स्ट्रीट में कैसे लोग रहते हैं, उसके बाद यही स्ट्रीट के बच्चे जब शेल्टर होम में जा कर के रहते हैं तो वो कैसे उनका लाइफ चेंज हो जाता है। तो मेरे बुक का नाम है होम स्ट्रीट होम। वो इस वजह से बिकॉज मैं पहले घर पे था, फिर मैं आकर के स्ट्रीट पे रहा एंड स्ट्रीट के बाद जब मैं शेल्टर होम गया तो शेल्टर होम मेरे लिए घर बन गया एंड वो बुक उसी सीक्वेंस में है। With an aim to give back to the society, Vicky also helps other kids in Salam Balak Trust through his photography. जब मैं फोटोग्राफी के थ्रू इनकम करने लग गया तो मैं कोशिश करता था कि जो मेरे एग्जीबिशन लगता है और अगर मेरे प्रिंट सेल होते हैं तो उसका मैं कुछ परसेंटेज डोनेट कर दूं सलाम बालक ट्रस्ट को। मुझे लगता है कि सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है मुझे, तो कहीं ना कहीं ये भी था कि हम कुछ ऐसा करें कि जो सोसाइटी को गिव एंड बैक दे सके।
Having won several awards, there is simply no stopping this promising photographer. As he continues to sensitize people about homeless children with his unique perspective.